فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی ڈپٹی میئر متسری لتا شوبھن ریڈی اور ٹی ٹی یو سی کے ریاستی صدر متس شوبھن ریڈی نے ڈپٹی میئر کیمپ آفس میں بڑا گنیش کے نوراتری تقریبات میں شرکت کے لیے دعوت نامہ قبول کیا، جو کہ خیرتآباد گنیش اتسو کمیٹی کے زیر اہتمام پوجا کی جا رہی۔ خیرتآباد گنیش اتسو کمیٹی کے ارکان وینا مادھوری سنگاری، راجندر، رانا پرتاپ مدیراج اور دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا صوفی خیر الدین قادری نے اسلامی اسکالرز اور آرگنائزر سے اپیل کی ہے کہ بین الاقوامی اسلامی اسکالرز کو باہر سے نہ بلائیں، کیونکہ جو اخراجات وہ انہیں دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان اخراجات کو غریب مسلمانوں اور یتیموں میں استعمال کیا جائے، کیونکہ موجودہ وقت میں ہمارے ملک کی صورتحال معاشی لحاظ سے بہت وسیع ہے۔ دیکھیے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا صوفی خیر الدین قادری نے اس ضمن میں مزید کیا کہا۔ شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیوں نہ ہو اس مہینے کو ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس کا تعلق ہے، اور اس مہینے کا ہم بہت ادب و احترام کرتے ہیں، اور الحمدللہ پورے 12 دن تک ہم اپنے آقا کی میلاد مناتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو بلکہ 12 دن مختلف مقامات پر سرکار کی ولادت کی خوشی میں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ سب کام لائق تحسین ہے، بلکہ لائق تقلید بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند کام ہم اس جشن میں ایسے شامل کر لیے ہیں جو نہ صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ لا یعنی میں جاتا ہے، اس کا کوئی مصرف نہیں، اور اس سے کسی کو کوئی ایصال ثواب نہیں۔ جیسا کہ جلوس میں باجے گاجوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور بھی کئی جو ہے نا کام جو ہے نا ہوتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں بیرونی مقررین کو بلانے کا بھی رواج عام ہو گیا ہمارے پاس، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک کوئی بیرونی مقرر نہیں آیا ہمارا میلاد کا جلسہ نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یہ کتنی غلط سوچ ہے، یہ آپ اس جلسے کو اپنی آقا کی محبت میں رکھ رہے ہیں، تو اس جلسے کی بنیاد آپ کے عشق و محبت پر ہونا چاہیے، نہ کہ بیرونی کمرشل مقرر کی لچھے دار باتوں پر ہونا چاہیے۔ بیرونی آج کل صاحب جتنے بھی یہ پیشہ ور مقررین ہیں پورے کمرشل ہیں، کیا آپ لوگ نہیں جانتے؟ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ آپ ایک ایک مقرر کے اوپر کتنے لاکھ روپے خرچہ کریں۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے راج بھون میں ایک خصوصی پروگرام میں تمام افسران اور عملے کے ارکان میں قدرتی نامیاتی رنگوں سے پینٹ ماحول دوست مٹی کے گنیش کی مورتیاں تقسیم کی۔ گورنر جشنو دیو ورما نے تمام ملازمین کو گنیش چترتھی کی مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ بھگوان گنیش رکاوٹوں کو دور کرنے والے ہماری ریاست اور قوم کے اتحاد، امن، ترقی اور خوشحالی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیں گے۔
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी नामपली रुकन असम्बली माजिद हुसैन की रहनुमाई में मल्लेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सुदूर के हमरा GHMC AE महेश के साथ श्री राम बाग मल्लेपल्ली डिवीजन में दौरा करते हुए वहां पर तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ओहदेदारों के साथ बीबी पेट में बड़े तालाब का दौरा किया। बीबी पेट चौंकों से भरा एक बड़ा तालाब है। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब किया और कहा कि उनका कहना था कि वो चावल के किसानों की हिमायत करेंगे जो शदीद बारिशों की वजह से नुकसान उठा चुके हैं। बीबी पेट तालाब का भरना किसानों के लिए एक अच्छी अलामत। एक हफ्ते से जारी बारिशों के बाइस तालाब मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी से भर गया है। मुकामी किसानों ने मसाइल उनके इल्म में लाए और कहा कि वो आपके मसाइल जरूर हल करेंगे। डी अशोक रेड्डी ने नारायणगुड़ा में वाटर बोर्ड डिवीजन ऑफिस का अचानक का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने डिवीजन में मौसूल होने वाली MCC शिकायत का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए MD ने आजमाबाद और मुशीराबाद इलाकों में आलूदा पानी के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करने की ख्वाहिश की। इसके लिए खुसूसी मनसूबा बंदी करने की तजवीज़ है। उन्होंने रिजर्वायर के अहाते में जमा कचरे को साफ करने का हुक्म दिया। वहां सड़क के दोनों तरफ फूलों के पौधे लगाने की तजवीज़ दी और बादजा उन्होंने आबी ज़खायर के करीब नस्ब फ्लो मीटर को चेक किया। फिर क्लोरिनेशन रूम में जाकर इस अमल का मुशाहिदा किया और क्लोरिनेशन के अमल के ऑटोमेशन के इम्कानात को तलाश करने का मशवरा दिया। MD वहां से हिमायत नगर चले गए। पानी की फराहमी के वक्त सार्फिन के घर जाकर पानी का मियार चेक किया। पानी के मियार पर सार्फिन से मशावरत की गई। उन्होंने कहा है कि वाटर बोर्ड बड़ी मेहनत और मुशक्कत से दूर दराज मुकामात से पानी फराहम कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपील की कि पानी को ज़ाय ना करें और उसे सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करें। सुबह सवेरे MD ने अफसरान के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की और उन्हें सीवरेज के मसाइल को पैदा होने से रोकने के लिए पेशगी इक़दामात करने का हुक्म दिया। टेक मिशन को मुयस्सर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शदीद बारिशों से तबाह होने वाले मेन होल्स की फौरी मरम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि मीठे पानी के मियार के टेस्ट को दुगना किया जाए। वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मयांक मित्तल ने कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने O&M डिवीज़न नंबर 6 के कई इलाकों का दौरा किया। ED ने कहा अफसरान को हिदायत की गई है कि वो गैर मुल्की आमदनी पर तवज्जो दें। नेवा, विहार और प्रशासन नगर में बारिश से तबाहशुदा सीवरेज पाइपलाइन का मुआयना किया गया। वहाँ के सार्फिन के घरों में क्लोरीन के टेस्ट किए गए और बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में सड़क की कटाई से होने वाले पानी के रिसाव की जांच की गई। बंजारा हिल्स में आनंद नगर और वेंकटा रामना कॉलोनी में पानी के मियार की जांच की गई है। उन्होंने वक्तन फवक्तन सार्फिन की शिकायत को दूर करने का हुक्म दिया। इस प्रोग्राम में मुत्तलिका DGM मैनेजर्स और अमले ने शिरकत की। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की सदारत में तेलंगाना हुकूमत के महकमे तालीम के ज़रिए एहतमाम रविंद्र भारती में गौरव पूजा उत्सव प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। डिप्टी CM मालू भाजी विक्रमार्का मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। हुकूमत के मुशीर के केशव राव, MLC कोदंडा राम, नरसी रेड्डी, रघुतम रेड्डी और AVN रेड्डी, हायर एजुकेशनल काउंसिल लंबाद्री चेयरमैन, महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुर्रा वेंकटेशम, कमिश्नर देवसेना सरुति ओझा, AV नरसिम्हा रेड्डी और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। वजीर पूनम प्रभाकर ने गौरव पूजा उत्सव प्रोग्राम में बेहतरीन असातिज़ा के लिए अवार्ड से नवाजा। पूनम प्रभाकर वजीर इंचार्ज हैदराबाद ने कहा असातिज़ा का दिन मुबारक उन असातिज़ा को जिन्होंने हमें तालीम के बुद्धा सिखाए और माशरे में एक नया रुझान लेकर आए और सबसे अच्छे उस्ताद हैं। उनमें से कुछ को हुकूमत ने नवाजा है। आप सबके आशीर्वाद से बनने वाली ये हुकूमत तालीम को तरजीह देती है।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. सिकंदराबाद के तहत तानाका डिवीजन के नए मुकर्रर करदा वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर मारुति और एडी वेटनरी सदगना देवी ने अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुर्ते श्रीलता शोभन रेड्डी और टीटीयूसी के रियासती सदर मुर्ते शोभन रेड्डी के साथ बशुक्रिया मुलाकात की। उनसे तानाका के कई डिप्टी मेयर्स कैंप ऑफिस में मुलाकात करने के लिए आए थे। आसिफाबाद के जनूर में हालिया दिनों पेश आए फिरका वाराना वाक़े पर मुसलमानों की जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी है। आदिलाबाद के महला खुर्शीद नगर में बाद नमाज जुमा मस्जिद नूर के रूबरू मुसलियान मस्जिद ने जनूर वाक़े पर पुरअमन एहतजाज करते हुए सख्त मजम्मत की और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और वाक़े के रोनुमा होने के वक्त वहाँ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहदेदारों की खामोशी व लापरवाही पर भी सवाल उठाए और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी पर मुतल्लिक़ा पुलिस अहदेदारान की मुअत्तली का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए इमाम व खतीब मस्जिद नूर मौलाना अब्दुल अलीम खासमी ने दो टुक अल्फाज में कहा है कि जुर्म करने वाले चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसे कानून के दायरे में रहते हुए सजा देनी चाहिए और किसी एक फ़र्द की गलती पर पूरे मुआशरे को नुकसान पहुँचाना कानूनी व अखलाक़ी एतबार से भी गलत है। उनका कहना था कि आदिवासियों के भेस में चंद शरपसंद अनासर जिन्हें पुलिस की पश्त पनाही हासिल थी, उन्होंने मुसलमानों की इमलाक इबादत गाहों को चुन चुन कर तशद्दुद का निशाना बनाया और हुकूमत वक्त इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो जनूर वाक़े पर खातियों की निशानदही करते हुए सख्त सजा दें और मुसलमानों की इमलाक को करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई भी करे। महल्ला खुर्शीद नगर के अंदर ये तमाम अफराद ने बाद नमाज जुमा ये अपना एहतजाज हुकूमत से नकल किया है कि हालिया ज़माने के अंदर अभी हाल चंद दिन पहले जैनूर के अंदर जो हालात ख़राब हुए हैं और जिसकी वजह से एक यानी मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और उसके ज़रिए से उनकी अमलाक को और इसी तरह मस्जिद को और उसके अंदर बेअदबी की गई और उसकी जानी माज़ों को ख़राब किया गया। मुसलमानों की दुकानों को टारगेट बनाया। जो काती है उसको सज़ा दी जाए, उसको पकड़ा जाए। एक आदमी की वजह से सारी कौम को टारगेट बनाना और उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाना और इसके ज़रिए से उनकी इबादत खानों का मजाक उड़ाना और उसके अंदर बेहुरमती करना, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इसके अंदर हुकूमत की कमज़ोरी और ख़ास तौर से पुलिस अमले की ये कमज़ोरी दिखाई दे रही है, जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए भी अपनी आँखों से देखा। हालांकि उन्हें तो ये चाहिए था कि जो लोग ये मुसलमानों के अमलाक को या उनके इबादत खानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे या उसके ख़िलाफ़ जैनूर के अंदर एहतजाज कर रहे या रैली निकाल के ज़रिए से मुसलमानों को टारगेट बना रहे, हुकूमत फ़ौरन उनको अपने दायरे में लेकर जो हुकूमत को अपने इसमें ले कर के और उनके ख़िलाफ़ मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, फ़ौरन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और जितने भी लोग थे कैमरों के ज़रिए से कैच करके उनको उठाया जाए और उठा करके उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के हालात
शहरों के अंदर पैदा ना हो। हम तेलंगाना हुकूमत से भी और खास तौर से कांग्रेस हुकूमत जो कि अपने आप को सेकुलर कहती है, उसके दौरे क़ियादत के अंदर इस तरह के वाक़यात अगर रोनुमा होते हैं तो हम इनको हुकूमत से ये कहते हैं कि आप इस वक्त उन अमले को जो इस वक्त जयनूर के अंदर पुलिस की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ले कि आपके होते हुए 2 दिन पहले आपके पास मुकदमा डाला गया और डालने के बाद उसके खिलाफ शहर के अंदर माहौल गर्म था, तो आपको ये था कि सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ा देते, अमले को ज़्यादा बढ़ा देते। ख़ास तौर से जयनूर की बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद जो कि बिल्कुल शहर के बिल्कुल करीब में और रोड पर शारे आम पर वाक़ है, वहाँ पर इस तरह के हालात पैदा किए गए और जो काती था आप उसके खिलाफ सज़ा देते या उसके खिलाफ जो भी इक़दाम करना चाहते, या वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को टारगेट बनाकर हमला किया, हालांकि जुर्म एक आदमी का था, उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते, उसके खिलाफ एहतजाज करते, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता मुसलमानों को टारगेट बनाकर उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाया, इबादत खानों को नुकसान पहुंचाया। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो पुलिस वाले इस वक्त ड्यूटी पर अंजाम थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें कि उन्होंने हालात को बिल्कुल बेकाबू कर दिया और बावजूद अपनी कोशिशों से इसको रोकने की कोशिश नहीं की, और इस तरह मुसलमानों के अमलाक को जो नुकसान हुआ है वो अपनी तरफ से इस नुकसान की भरपाई करें। अगर नहीं करेंगे तो हम उस वक्त तक ये एहतजाज नकल करते रहेंगे। हुकूमत के सामने भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और पुरअमन ये एहतजाज नकल करते हैं कि जिस मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया आप हुकूमत उसकी भरपाई करे, और इसी तरह हमारी मस्जिद को जो उसकी बेहुरमती की गई और उसकी चीज़ों को तोड़ फोड़ किया गया इसकी भी भरपाई करे और जिन खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। एसपीआर ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन सोनती रेड्डी पन्नारेड्डी ने तलबा को मतलब किया कि आइए मिट्टी गणेश का इस्तेमाल करें, आइए माहौल की हिफाजत करें। गणेश की मूर्ति की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले रंगों में मर्क्यूरी और शीशे की मकदार ज़्यादा होती है। ये आसाबी निज़ाम बच्चों और हामिला ख़वातीन के लिए बहुत नुकसानदा है, इसलिए रंग बिरंगे गणेश के बजाय मिट्टी का गणपति लाना बेहतर है। जब आप रंगीन गणेश की मूर्ति को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो इससे जिल्द की एलर्जी और दाने पड़ जाते हैं, तो हम इतनी शरारतें क्यों करते हैं? मिट्टी के बुत मिल जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। रंग गणेश के आँखों को नुकसान पहुंचाता है जो जिस्म का दूसरा हिस्सा है, और आँखों में जाना ये नुकसानदा साबित होता है। आँखों में जलन होता है और इन्फेक्शन जैसे मसाइल होते हैं। लिहाजा मिट्टी गणपति को तरजीह दें और ख़ानदान के साथ सब सेहतमंद रहें, माहौल भी साफ़ सुथरा रखें, और बुत इंसानी ज़िंदगी और माहौल पर कोई मनफी असर नहीं दिखाते। बॉलीवुड अदाकारा और फिल्म साज कंगना रनावत अपनी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज़ की तारीख मुलतवी होने पर बहुत अफसरदा हैं। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी तनाज़ात के घेरे में है। उसे सेंसर सर्टिफिकेट ना मिलने पर फिल्म के मेकर्स बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। फिल्म की रिलीज़ तकरीबन 2 हफ्तों के लिए रुक गई। कंगना की इस फिल्म को 6 सितंबर को रिलीज़ होना था। अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को हुक्म दिया है कि वो 18 सितंबर तक इमरजेंसी के सर्टिफिकेट पर फैसला करे। कंगना रनावत इमरजेंसी की रिलीज़ की तारीख मुलतवी होने पर बहुत अफसरदा है। कंगना रनावत ने अपने अकाउंट पर पोस्ट में लिखा है कि भारी दिल से ऐलान करती हूँ कि मेरी हिदायत करदा इमरजेंसी को पोस्टपोन कर दिया गया है। हम अब भी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट का इंतज़ार कर रहे हैं। रिलीज़ की नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग पेशेंस का शुक्रिया। काबिल ज़िक्र है कि जी स्टूडियोज़ और मानिक रनेका फिल्म्स की प्रोड्यूस करदा इमरजेंसी पर मबनी फिल्म है। इस फिल्म में कंगना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म इमरजेंसी में कंगना रनावत के अलावा अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मलंद सोमन, श्रेयास तलपड़े और अनजहानी सतीश कौशिक भी मरकजी किरदारों में है। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.